candidates, it is called as medical examination, ME. Or PME, that is at periodicity, certain periodicity, periodic medical examination hota hai, that is only applicable for non-gazetted, and at certain intervals they are being done. Now, what categories are there on medical grounds of different non-gazetted, and there are categories of gazetted also, that you have to remember. मैं थोड़ा क्लास में उत्तर जी. अरे थैंक यू सर. ओके. So whenever you have also undergone this medical examination as a candidate, तो हमारा ये medical board होता है. And medical examination for non-gazetted इसमें only single senior doctor करते हैं. So this is the main difference. And also for physically handicapped जो 3% quota है, physically handicapped maybe orthopedically handicapped or maybe ear problem or maybe eye problem. So depending upon that, we will only consider upon that, provided they are 40% and above handicappedness. But remaining part जो है, अगर orthopedically handicapped है, his vision has to be perfect. जो हमारा standard चाहिए वो. और अगर visual problem है, तो बाकी चीज में सब he should be fit enough. So this is one aspect की medical examination only for candidates, both for gazetted and non-gazetted. Similarly, non-gazetted का medical examination जो करते हैं, as I said, this is called as PME, that is periodical medical examination of serving employees. So re-examination also from promotion to higher medical categories जब होता है of the non-gazetted. Suppose a person is खलासी, अभी after a departmental exam after 10 to 15 years, he thinks himself to sit for the exam to get himself upgraded from khalasi to a fitter. And then he has to pass some trade test and then finally medical examination. He has to be fit in that. In successive slides, we can see for non-gazetted ABC category medically laid down है. And अगर कोई B1, B2 है, A1, A2, A3 है, अगर किसी को higher category में जाना है, at every step he has to pass the exam medically. He has to pass those criteria laid down. Now examination or promotion to higher class, as I said, अगर होता है उसमें भी होता है. Now there are certain group C staff of every department, engineering हो, technical department जो भी है चारों, personal department, traffic department से वो gazetted class 2 officers बनते हैं. In that case also departmental exam होता है, वाइवा होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन he has to pass. अगर सब कुछ पास कर गया, medically he is not unfit. Very rare cases, but still 5 to 10% cases में they are made unfit and not being allowed to get promoted. Then एक सर्विसमैन अगर रेलवे में आता है, रीअपॉइंटेड होता है, उसके लिए होता है. Then रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का जो स्टाफ है उसके लिए भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. एंड फाइनली स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं अंडर 1 to 3 सर्टेन कंडीशंस है. उसके ऊपर we'll see the last slide on that. Now, what is the objective? First two para are important for you to secure continuous effective service without interfering with his duties. किसी को हमने ले लिया, अगर 34-35 साल अगर पूरा प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं, तो इट इज अ लॉस टू द एक्सचेकर एंड ही में फॉल इल. तो एक बर्डन हो जाता है रेलवे के ऊपर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अ सिक पर्सन. सो वी हैव टू एंश्योर दैट he will have continuous effective service without interfering with his duties and premature death ना हो जाए, early pension payment ना करने पड़े इसके लिए. So this is the main objective. Or during the medical examination, no disease, no constitutional affliction, no bodily infirmity has to be there. अगर है तो he will be made straight away unfit. Now gazetted service के और non gazetted service के जब medical examination होता है as a candidate, जब तुम लोगों का हुआ है, now gazetted is divided into technical and also it is divided into non-technical category. Now technical categories में कौन-कौन है? Technical categories में all of you 4 departments of engineering services, Indian Railway Traffic Services, जमालपुर SCRA, mechanical engineers, post in marine establishment आजकल है नहीं, but it is still there in the manual, medical manual, इसलिए हमने रख दिया. And of course our department Indian Railway Medical Service, जिसको भी Indian Railway Health Services कहते हैं.
नाउ ये जो टेक्निकल सर्विसेज है रेलवे में, इसका प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब व्हाट इज देयर रोल? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ओके, ट्रैक से लेके सिग्नल से लेके मेंटेनेंस से लेके सब कुछ करते हैं टू रन द ट्रेन। ट्रैफिक सर्विसेज ऑपरेशन में लगा हुआ है। Similarly, mechanical engineers SCR area, but why medical has been made into technical? Because we have to, while medical examination, we have to medically examine those technical group of people, and if you are not technical standard के हिसाब से हमारा नहीं है medical standard, vision है, physical है, तो we are not fit to do the medical examination. That's why Indian Railway Medical Health Services also comes under technical. बाकी जितना है नॉन टेक्निकल, बट इंजीनियरिंग में से जो पहले जा चुके हैं इन द स्टोर्स, जो कि टेक्निकल सर्विसेज में क्वालिफाई नहीं करते, बट दे क्वालिफाइड फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज, दे गो अंडर इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, जो इस तुम्हारा बैच में भी कुछ है। ऑफ कोर्स इंडियन रेलवे अकाउंट्स, इंडियन रेलवे पर्सनल एंड सेक्रेटरिएट लेवल सर्विसेज इन क्लास 1 क्लास 2 इन बोर्ड, वर्कशॉप्स में कुछ मेटलिस्ट, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट है, ये सारे जो है इंडियन नॉन टेक्निकल में आता है। एंड ऑफ कोर्स IRPF, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बट इसमें एक वो बात है कि आउट ऑफ दीज केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट एंड इंडियन IRPF, जो भी ऑफिसर्स है गेजेटेड में, दो दे आर ग्रांटेड नॉन टेक्निकल कैटेगरी, बट जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इन दोनों का केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट एंड IRPF are being examined under the standard of technical category. So what is the difference between technical and non-technical category? That we can just see. इसमें this is only for the our medical department, जो प्रोफेशनल्स है उसके लिए ज्यादातर कड़क है। बस दो बेसिक डिफरेंस मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। टेक्निकल कैटेगरी में कलर विजन मस्ट, whereas non-technical category में color vision is not required. So this is the basic difference, and also of course power of glasses. So power of glasses जो है टेक्निकल में विदाउट अदर ग्लासेस नॉट मोर देन 6 होना चाहिए, और आजकल सुना है इसको प्लस डायोप्टर का -6 एंड +4 कर दिया, तो दिस इज गुड। और जिसका इसके ऊपर जाता है दे आर बीइंग कंसीडर्ड अंडर नॉन टेक्निकल कैटेगरी। ऑफ कोर्स कलर विजन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया आल्सो। So in respect of technical services, total amount of myopia should not exceed 6, and total of our hypermetropia should not exceed +6, sorry, it should be 4. Now during medical examination of the candidate, contact lenses are not allowed. Now I have heard that this notification has come during your medical examination notification also, in the gazette also, that they are allowing now the LASIK operation. Contact lens not allowed, but LASIK is being permitted in the gazetted category, depending upon subjected to certain conditions, that उसका corneal surface and corneal जो क्या बोलता है depth should be proper, etc. ये सब देख लेते, कोई progressive disorders नहीं है, तो उसके बाद इनको परमिशन दिया जा रहा है। तो this has new thing has come up जो कि earlier में नहीं था। Now for class 2 appointment, of course there is some relaxation, जबकि क्योंकि they have already grown in age and they are coming from the departmental promotion होता है, उनके लिए थोड़ा सा different है। but वहाँ पे भी color vision, अगर technical category में promotion हो रहा है from group C to group B gazetted officers, तो color vision and जिसका color vision नहीं है तो he has to cannot go into technical category. Of course, जिसका myopic है, they are undergoing fundus examination also to rule out any progressive disorder. Now, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल कैटेगरी में कलर विजन मस्ट, बट नॉन टेक्निकल में से ओनली IRPF एंड केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट satisfactory color vision constitute recognition with ease with hesitation, signal red, green and white, and also the plates. अगर ये नहीं है इन दोनों में से IRPF and chemist and metallurgist out of the non-gazetted, they are not being qualified. So I will skip these. These details are not required for you. Now coming down to squint. Now for technical services, presence of binocular vision is essential. Binocular visions का detail मैं नहीं बताऊंगा, but if you remember कुछ महीनों पहले जब medical examination हुआ था,
वहां पे एक फिल्टर ग्लास लगा के वन डार्क वन रेड वन डार्क वन ग्रीन एंड देन वन रेड वन ग्रीन स्पेक्स का फ्रेम लगा के फिल्टर डाला था एंड यू आर आस्क्ड टू सी द 4 डॉट्स, कितना डॉट्स नजर आ रहा है गोल गोल, तो आपको 4 नजर आया होगा, 2 ग्रीन एक येलो एक रेड ऐसे। अगर किसी को 5 आता है तो इसमें डाइवर्जेंस स्क्वीन बोलते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट स्क्वीन है, बायनोकुलर विजन उसका नहीं है। अगर टेक्निकल कैटेगरी में और अगर इसका जो है बायनोकुलर विजन नहीं है, ओके यू पुट अप दैट क्वेश्चन प्लीज, आई विल सी। I'll just address to that, Akash Verma. So minimal squint है but binocular vision intact है and your of course visual acuity is okay, visual acuity proper है as per the requirement standard requirement and binocular vision distorted है, in that case technical category में and also from the medical department and RPF they are not permitted. Just 1 second please. Okay, so ये this is about squint. Now next है हम बात करेंगे कि नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय। नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज में अभी तक गेजेटेड की बात किया, मेडिकल एग्जामिनेशन किया कैंडिडेट्स की, अभी नॉन गेजेटेड के भी ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एंड एम्प्लॉइज का पीएमई होता है। बट बिफोर नोइंग दैट वी शुड नो, एवरीबॉडी शुड नो, प्रेफरेबली बिकॉज यू आर इन टेक्निकल कैटेगरी एंड ऑल्सो द IITS पीपल हु आर देयर, उनके जानना चाहिए कि तुम्हारे अंडर जितना नॉन गेजेटेड रहेगा सबका पीएमई करना जरूरी है। तो बट उसमें से जानना है कि कौन सी कैटेगरी, तो इन लोगों को इफ यू सी द कलर्ड वन, ए बी एंड सी कैटेगरी में तीनों में बांटा गया नॉन गेजेटेड को। तो जब वो लोग अपॉइंटमेंट में आता है एज कैंडिडेट, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बाद में हम इन वेरियस पीरियोडिसिटी, दैट पीरियोडिसिटी यू हैव टू रिमेंबर, आई विल कमिंग टू दैट पीरियोडिसिटी में जब आता है उसको बोलते हैं पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। सो पीएमई इज फॉर in-house employees and medical examination is for candidates. Now non-gazetted employees में definitely authorized medical examiners है। Can you call me later? I am in class now. So दो चीज हम लोग करते हैं as you have undergone also, one is physical and another one is revision part. So physically वो भी fit होना चाहिए, कोई deformities नहीं होना चाहिए, etc etc. And contact lenses also for candidate in category A and B not permitted. So contact lenses here is not permitted for gazetted at all, both in technical and non-technical. Similarly, out of ABC category which we have made out, उसमें से A और B जो vital है, उसमें contact lenses are not permitted. Call me after 1 o'clock, please. Now अब आता है इसमें से only you remember this part. ये जो डिफरेंट टाइप्स है इसमें से ओके ठीक है,
If you're so much interested, not interested, I know, but just to mention that because this A1, A category is divided into A1, A2 and A3. Now A1 is most important because इसमें जो है ट्रेन रनिंग के लिए इन्वॉल्व है 4 व्यक्ति है, जो पहले बहुत था, अभी 4 जन ज्यादा जा है. नंबर 1 डायरेक्टली ट्रेन रनिंग सेफ्टी कैटेगरी है, A1, A2 and A3. आउट ऑफ दैट A1 में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड एंड मोटरमैन इन सबअर्बन ट्रेन. ये 4 जो पीपल है ट्रेड जो ट्रेन रनिंग में है, दे आर फॉल अंडर दिस A1. ऑफ कोर्स रेल कार ड्राइवर जो है पहले फुटप्लेट स्टाफ होता था, ये सभी फुटप्लेट स्टाफ जो है जो मोटर ट्रॉली लेते हैं, ये सभी जो उसका ड्राइवर है, दे आर ऑल कमिंग अंडर दिस सेफ्टी कैटेगरी A1. But A category, what you have to remember is for what? They work for the interest of the public safety. तो पैसेंजर ट्रेन जा रहा है चाहे गुड्स ट्रेन जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बट पैसेंजर सेफ्टी के लिए these all 3 A1, A2 and A3 कैटेगरी पीपल है. और एग्जांपल के जैसे स्टेशन मास्टर एक है, एक ASM ट्रेन रनिंग के लिए होता है, एक दूसरा स्टेशन मास्टर होता है, दे आर ओनली इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. सो इट डिपेंड्स. तो ये इतना नुआंसेस जो है पर्सनल एंड मेडिकल डिपार्टमेंट इसको डील करते हैं मोस्टली. एंड ऑल्सो द LC गेट्स में जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स है, मैन गेट्स अभी तक जो है गेट कीपर होता है, दे फॉल अंडर A3. ऑल मोटर ड्राइवर्स चाहे 4 व्हीलर का हो कुछ भी हो, तो ये ट्रैक्टर ड्राइवर, मोटर ड्राइवर, दे कम अंडर A3 ऑल्सो. सो A category is for public safety, interest of the public safety, that you have to remember. Similarly B category is for the दो में बांटा गया, B1 and B2. So A, A1, A2, A3, B, B1, B2, and of course C, C1, C2. So talking about B, it is for what? The most important is the interest of the employee himself and his fellow worker. For example, trackman. Now trackman यहाँ पे काम करते हैं, even the RPF staff. Now RPF staff इसमें से RPF supervisor like ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है. एंड पीवे मिस्त्री है, ट्रैकमैन है, etc. So यहाँ पे trackman working on a track, suppose they are not taking any block, and unblocked track में काम कर रहे हैं, but one team has to be alert that ट्रेन किस तरफ से अप लाइन में है, डाउन लाइन है, उसी हिसाब से ट्रेन को नजर करने पड़ेगा. रमलिंग ऑफ द ट्रेन ऑन द ट्रैक होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से, उसको भी नजर होता है, सिग्नल देखने पड़ता है, एंड अलर्ट होना चाहिए, विजन प्रॉपर होना चाहिए. So and जो काम कर रहे खुद उसके लिए भी. So they are working for the staff co-workers as well as for himself. So this category is important. Why? Because it is they are working in the interest of the employee and fellow workers also. And for lastly C category, C1, C2 में बांटा गया. C category is for the administration only. जितना ministerial staff है या हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ है, स्कूल टीचर्स थे, अभी स्कूल बंद हो गया, वहां पे जो थे एक्सेट्रा, ऑल मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन ऑफिसेस, सारे जो पर्सनल अकाउंट्स की है, ये सब C कैटेगरी में आते हैं. एंड ऑफ कोर्स जितना ग्रुप D स्टाफ है वो भी C2 में आता है. सो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना कि A है, जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए सेफ्टी कैटेगरी है. B फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स इज कॉल्ड फेलो वर्कर्स, एंड C फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. तो A एंड B कैटेगरी में कॉन्टैक्ट लेंसेज नॉट परमिटेड, C में फिर भी परमिटेड है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ कैंडिडेट. जनरल एग्जामिनेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद नॉट डिटेल हमें नहीं बताएंगे. बट वन थिंग, यस, जब RPF का नॉन गेजेटेड की अपॉइंटमेंट होता है, नॉट टॉकिंग IRPF, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड की चल रहा है, उसके लिए जब RPF का होता है, मिनिमम बॉडी वेट होना चाहिए 50 किलो, नॉट लेस देन दैट. ठीक है, नहीं तो फायरिंग में वो भी गिर जाएगा. तो दिस व्हाट हैपेंस. सो द प्रिंसिपल पॉइंट्स अटेंडेड आर कनेक्टेड टू असन, तो कंडीशन ऑफ द हार्ट लंग, ये सब हम देख लेते हैं. नॉटिंग फॉर यू, let me skip this. Hearing. Now hearing test किसी जगह कैजुअली करते, किसी की जगह करते नहीं है, बट यस, हियरिंग एड के साथ गेजेटेड ऑफिसर फिर भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इस कंडीशन. बट हियरिंग एड के साथ में A एंड B कैटेगरी में आउट ऑफ ABC आर नॉट परमिटेड विथ हियरिंग एड, बट C में फिर भी परमिटेड है, C1. सो regarding speech, मेडिकल एग्जामिनेशन में स्टैमरिंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. अगर सीवियर स्टैमरिंग है तो उसको जो है पब्लिक जो डीलिंग है, लाइक TT, लाइक रिजर्वेशन सेंटर, लाइक
डिविजनल पे ऑफिस जहाँ पे कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्सल ऑफिस जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होता है, वहां पे हम लोग इसको पोस्टिंग के लिए द डिपार्टमेंट ऑल्सो डज नॉट डू। अब इसका मैं जो है जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, A1, A2, A3 जो ए कैटेगरी बोला था, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी कैटेगरी। Just see the example, not to remember, just for your knowledge. A1 and A2 where no glasses are permitted as a candidate when they come for initial appointment as candidate medical examination, or color vision must. So entire A category में color vision must in A1, A2 and A3, and C the strictest group is A1 जहाँ पे वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड एंड मोटरमैन एंड सबअर्बन ट्रेन्स चलाते हैं, उनके लिए उसमें नो ग्लासेस तो है ही, 6x6 होना पड़ेगा। और A2 में लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन इन पावर ऑफ एक्यूटी विजन में है, बट नो ग्लासेस स्टिल। और बाकी के लिए यू नीड नॉट रिमेंबर कि कितना पावर है, बट सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी कंपेयर टू द C कैटेगरी जहां पे काफी रिलैक्सेशन है, ग्लासेस भी परमिट है, A3 से ग्लासेस परमिटेड है, ग्रेजुअली पावर बढ़ जाता है इसका। एंड C2 में 1 आई अगर है पर्सन, वो भी कैन बी अपॉइंटेड इन C2 लाइक खलासी और ये सफाई कर्मचारी एटसेट्रा। नाउ अभी फंडस एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स जिसका है सभी A1 कैटेगरी में हम करते ही है, और जो मायोपिक है उनका तो करना कंपलसरी है। नाउ फंडस जब PME के लिए आता है A1 कैटेगरी, बिकॉज इट इज वाइटल, उनके लिए कंपलसरी है फॉर फंडस डूइंग, इवन एट एवरी स्टेजेस दे कम फॉर PME। सो बिफोर ट्रेनिंग एंड बिफोर अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। नाउ वी आर कमिंग टू पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नॉन गेजेटेड स्टाफ। A1, A2, A3 उसका पीरियोडिसिटी क्या है, B1, B2 का क्या है। B1, B2 में RPF स्टाफ भी आता है। RPF का SI, ASI एक सुपरवाइजरी स्टाफ है, और बाकी जो गेट पे देखते हो जो कांस्टेबल है, जवान है, उनके लिए अलग होता है। तो ये एंड C1, C2 के नो PME। सो PME इज डन ओनली फॉर A एंड B कैटेगरी। C कैटेगरी के लिए एक बार अपॉइंटमेंट हो गया लाइक गेजेटेड ऑफिसर, नो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन C1 के लिए होता नहीं, बट A1 एंड A2, B1 A एंड B में होता है। नाउ पीरियोडिसिटी क्या है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, because it is a very important safety category. All A1, A2, A3, that is entire A category, from that after the initial appointment, every 4 years till they are 45 years of age, from 45 till 55 every 2 years, and after 45 annually every year they have to come till they superannuate. So ये है periodicity in A में, up to 45 years from appointment every 4 years, 45 to 55 every 2 years, 55 onwards till retirement every year. B1 में क्या है, on attaining the age of 45, initial appointment हो गया, उसके बाद 45 जब उसका उम्र होगा, उसके बाद से आगे every 5 years, so 45, 50, 50 है, and before retirement अगर उसका टाइम आ गया तो the fourth and last one. इनमें से शामिल है RPF का सुपरवाइजर, SI, ASI एटसेट्रा, सेम पीरियोडिसिटी फ्रॉम द एज ऑफ 45 एवरी 5 इयर्स। बट एक्सेप्शन है कि जो RPF स्टाफ जिसको बोलते हैं, RPF स्टाफ मींस RPF कांस्टेबल्स, दे वंस दे आर रिक्रूटेड विद बोथ पासिंग फिजिकल एंड विजुअल एग्जामिनेशन, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन ओनली होता है एवरी 3 इयर्स अंटिल रिटायरमेंट, बट नो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन बीइंग परफॉर्म। एक बार RPF का जवान आ गया, फिट हो गया, उसके एवरी 3 years till रिटायरमेंट दे कम फॉर ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी तक ये लेट डाउन है, एंड C1, C2 में PME होता नहीं। सो A1 में एक मैं इसमें ये है क्वेश्चन आता है कि एवरी 4 years वो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड कि A1 कैटेगरी में 6x6 विजन, कलर विजन प्लस एंड नो ग्लासेस। सिमिलरली A2 में भी नो ग्लासेस। अगर मान लो एक 26-25 साल या 28 साल का कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट हो गया, फिट हो गया, आफ्टर 4 years व्हेन ही कम्स फॉर हिज फर्स्ट PME, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, उस समय उसका विजुअल एक्यूटी 6x6 नहीं हो रहा है, एक आंख में करेक्शन के बाद 6x6 हो रहा है। इसका मतलब स्पेक्स का उसका चाहे वो 0.25 हो, 0.5 का हो, -1 हो, +1 हो, उसके लगाने के बाद उसका फिर विजन 6x6 आ रहा है। सो क्या करेंगे, यही आता है कि क्या करना चाहिए उसको।
तो अब इसमें एक बात है कि कोई भी नॉन गेजेटेड का जब एग्जामिनेशन हुआ है शुरू में, अपॉइंटमेंट हो गया फिट होने के बाद, पीएमई तो पीरियोडिसिटी बना दिया, ठीक है, लेकिन जब पीएमई में पहला 6 इयर्स फ्रॉम द आज 2020 अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ 2026 तक, जब भी वो आएगा, चाहे एक बार हो, एक बार ही आता है क्योंकि नेक्स्ट होगा 8 साल बाद, तो पहला पीएमई जब आएगा उसका स्टैंडर्ड, विजन स्टैंडर्ड और बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड शुड बी एज गुड एज अ कैंडिडेट। अप टू 6 इयर्स उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेगा। सो अगर लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट में आता है, पहले अपॉइंटमेंट हुआ है, उसका 6x6 कलर विजन प्लस नो ग्लासेस में उसका अपॉइंटमेंट हो गया, 4 साल बाद पीएमई में अगर आए हैं, उसका ग्लासेस का जरूरत पड़ गया, तब जाके 6x6 हो रहा है, उसको हम उसी नौकरी पे नहीं रखेंगे, नौकरी से बाहर नहीं करेंगे, लेकिन उसको बोलते हैं डी कैटेगराइजेशन, उसका कैटेगरी चेंज कर देंगे। कौन करता है? मेडिकल डिपार्टमेंट करता है। क्यों करता है? बिकॉज वो ही इज नॉट, इट इज माई ड्यूटी टू सी दैट जो लेट डाउन स्टैंडर्ड में दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फिट और नॉट, फिजिकली या नॉन विजुअली। अगर फिजिकली फिट है बट विजुअली अनफिट हो रहा है, उसको हमें कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगा। उसको पहले बोलते थे डी कैटेगराइजेशन, 2008 से इसका नाम चेंज हो गया AEMG। एक स्लाइड में आपको बता दूंगा, एंड दैट मे बी आस्क्ड व्हाट इज AEMG, alternate employment on medical ground, alternate employment on medical ground, AEMG कर देते। अब AEMG करने के बाद उसको जहां से आया था मेमो लेके एग्जाम पीएमई के लिए वहां वापस भेज देते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट वो ड्यूटी वापस ज्वाइन नहीं कर पाते बिकॉज उसका कैटेगरी चेंज करना है, रिकमेंडेशन कर दिया हमने। अब पर्सनल डिपार्टमेंट में एक स्क्रीनिंग कमेटी होता है हर डिवीजन में, जिसका चेयरमैन होता है ADRM, और एक्चुअली उसका जो कंडक्ट करते हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी का वो होता है सीनियर DPO या DPO जो ब्रांच ऑफिसर है। एक और ऑफिसर को लेते हैं और सेकंड मेंबर होता है किसी एक लेवल की मेडिकल ऑफिसर की, चाहे ADMO हो लोअर लेवल के लिए, हायर लेवल के लिए कोई J ग्रेड मेडिकल ऑफिसर, जो भी मिलते हैं सीनियर ऑफिसर स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर होता है। मेंबर स्क्रीनिंग कमेटी क्या करते हैं कि तुम्हारा तो कैटेगरी चेंज हो गया, तुम्हारा पे इंटैक्ट है, सैलरी बेसिक इंटैक्ट है, लेकिन जो ट्रेड तुम्हारा पे थे वो लोको पायलट नहीं होगा, अभी गार्ड नहीं रहोगे, अभी तुम्हारा कोई सूटेबल दूसरा जॉब है, हमें तुम्हें ओसी स्केल के अवेलेबल जो है, मे बी इन द सेम स्टेशन ऑफ दैट डिवीजन, मे नॉट बी ऑन द सेम स्टेशन ऑफ द डिवीजन, देते हैं। 2-3 बार माना करते हैं, उसके बाद उसको लेना ही पड़ता है। अब तो वी कैन नॉट वेट फॉर अनंत काल से तक उसको पेंडिंग नहीं कर सकते। मेरा क्लास हो रहा है सर आफ्टर दैट। सो दिस इज हाउ द थिंग हैपेंस, बिकॉज इसके पीछे जो कहानी है कि 6 साल तक स्टैंडर्ड रहेगा कैंडिडेट के हिसाब से। तो पहला पीएमई में A कैटेगरी जब आता है, अगर कोई गड़बड़ी पाता तो उसको AEMG करने के लिए मजबूर होता है। अब क्वेश्चन किसी ने करते हैं कि अगर मान लीजिए 8 साल दो सेकंड पीएमई में जब आता है, 8 साल के बाद मान लो उसका लेट डाउन जो स्टैंडर्ड है विद ग्लासेस लोको पायलट के हिसाब से या असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से अगर परमिटेड हो गया, तो क्या, या लेटर ऑन स्टेज में ऑन 3rd और 4th, तो उस समय क्या उसको वापस हम लोको पायलट में जाने देंगे? नो। वंस यू आर डीकैटेगराइज्ड, वंस एम्प्लॉय इज डीकैटेगराइज्ड एंड अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ही हैज टू कंटिन्यू विद दैट, उसको आगे जाके नहीं होगा। बट यस, प्रॉब्लम ये है कि देयर आर मेनी डिस्प्यूट्स की फॉर एग्जांपल दूसरा कैटेगरी से उसको अब फिर लोको पायलट के हिसाब से ट्रेड टेस्ट होगा, उसका ट्रेनिंग है देने पड़ेगा, सब कुछ करने पड़ेगा। अगर वो क्वालिफाई करते तो उसको फिर हम लोको पायलट एट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज कर सकते। नॉर्मली सेफ्टी कैटेगरी में नहीं करते। इंडियन रेलवे में एक आधा इंस्टेंस कहीं किसी रेलवे में होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट, लेकिन होता नहीं है। सो I will skip this, it is not for you. Yes, finally special medical examination. Now special medical examination, in spite of medical examination being done, special क्यों बताते हैं? 1, 2, 3 reasons के लिए होता है। एक, स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन 99% केसेस में नॉन गेजेटेड के लिए होता है। When they are absent unauthorizedly for 90 days,
और जब वापस आता है दे बीइंग नॉट RMC, that is railway medical certificate, they bring PMC. Now what is PMC? Not periodical medical examination, PME था. PMC प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट. तो किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो MBBS हो, सुपर स्पेशलिटी हो, स्पेशलिस्ट हो, या एक क्वैक हो, RMP हो, उसके पास से अगर कोई ऐसी सर्टिफिकेट सिक और फिट कवरिंग दोज 90 डेज लेके आते हैं, but since it is more than 90 days, they can be subjected to special medical examination. Number one of cause for special medical examination is this. Number two, after any accident of running, the running staff is subjected. So running staff कौन है? ट्रेन कौन चलाते हैं? ALP and this guard. फर्स्ट इनका करना है. फिर रनिंग स्टाफ वो भी होता है कि केबिन मैन भी होता है, अगर जरूरत पड़े उसका लगेगा इंक्वायरी, उसको भी हो रहा है, उस तब भी. एनी एक्सीडेंट, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे फिट हो, चाहे स्पैड का केस हो, ओवर शूटिंग हो गया, ओवर स्पीडिंग करके सिग्नल क्रॉस कर लिया, या माइनर डिरेलमेंट हुआ जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन डिरेलमेंट हुआ, टाइम बिगड़ दिया, पैसेंजर ट्रेन हो, फ्रेट ट्रेन हो, तो जब भी होता है तो ये तीनों का जरूरी है. भले वो सेफ्टी कैटेगरी A1 में है या जो भी है, उनको अगर मान लो 3 महीने पहले PME रूटीन पीरियोडिकल PME हुआ है, 3 महीने बाद ऐसी कुछ एक्सीडेंट घटना हुई, अगेन ही विल बी सब्जेक्टेड टू स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन. नंबर 2. एंड नंबर 3, अगर कोई भी एम्प्लॉय भले C कैटेगरी का भी हो जिसका PME नहीं होता है, बदतमीजी से पेश हो रहा है, फ्रीक्वेंट एब्सेंटी है, या कोई प्रॉब्लमेटिक है, तो सुपरवाइजर कैन एडवाइस फॉर हिज स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन. तो तीनों कारण से अगर जब आते हैं, व्हाट वी विल सी कि मेमो लेके आया था, जो कि PME में लेके आता है स्टैंडर्ड मेमो, उसके ऊपर स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन लिखा होगा, बट उसके पीछे नंबर वन, these one of these three reason has to be endorsed, and number two, that endorsement has to be countersigned by at least a promoting officer, class 2 officer of that particular department. अगर कुछ भी नहीं लिख के लेते आते, कुछ भी काउंटर साइन करके खाली सुपरवाइजर का सिग्नेचर लिख के आते हैं, ऊपर लिखा हुआ स्पेशल मेडिकल मेमो, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. ही इज बीइंग सेंट बैक टू गेट एंडोर्स्ड. व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर सेंट फॉर स्पेशल, एंड व्हाई एंड वेयर इज काउंटर सिग्नेचर करके ले आओ एक गेजेटेड ऑफिसर की. So this is the condition where we do special medical examination. So conclusion में two things happens. One is medical examination for candidate in order to ensure selection of physically fit person who does not become a liability, and PME करते हैं non gazetted staff को A and B category में to have them to ensure that continuous physical fitness of the serving employee हो. So I end this. 2 minutes के बाद मैंने I will go to medical board. I'm just changing the slide to medical board. Now यहाँ पे जो intraocular lens implant PCIOL, yes, after joining service you can go. इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट होता है कैटरेक्ट के लिए, लेंस चेंज करने के लिए. अगर ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है, अगर प्रीमैच्योर कैटरेक्ट है, फॉर दैट ऑफ कोर्स वन कैन गो. गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए आकाश कोई प्रॉब्लम नहीं. जिसके लिए क्वेश्चन है उसने समझ लिया, सुन लिया. आकाश है या नहीं? आकाश में आवाज बीच में कट गई थी. अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी आ रही है. तो देयर इज नो इशू इन दिस ऑफ योर क्वेश्चन. इंट्राओकुलर लेंस हो सकते हैं. दीपक क्या हुआ?
चलो ओके नाउ मेडिकल बोर्ड होता है नाउ हियर आल्सो टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि मेडिकल बोर्ड नॉर्मली टू कैटेगरीज में होता है वन इज ऑब्लिगेटरी की जरूरत है ही करना ही है दूसरा है कि ऑप्शन जब जरूरत पड़ेगी तब करना है तो ऑब्लिगेटरी अब गेजेटेड नॉन गेजेटेड में कैसे होता है वो दिखा देते गेजेटेड में 1 2 3 रीजंस है नॉन गेजेटेड में only the first second and the third only two अब गेजेटेड में कैसे होता है नाउ एज द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट जैसे एक मेडिकल बोर्ड फॉर्मेशन हुआ था एंड यू हैव गॉन थ्रू दैट सो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नंबर टू अगर ऐसा ना हो कि इन व्हाइल इन हार्नेस यानी जब जॉब चल रहा है later in life somebody becomes so ill that he is no more being eligible to perform his job so उसको अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है we will wait for 3 months then again extended for 3 months review board होगा उसके बाद another 6 months we will wait for any gazetted officer or non gazetted officer maximum up to 1 year के बाद अगर देखते हैं कि इसका इनका जो है पेशेंट अगर काम के लायक है वापस जा सकते इट्स फाइन अगर नहीं जा सकते देन ही विल बी मेडिकली इनवैलिडेटेड इनवैलिडेटेशन में इज टोटली आउट फ्रॉम जॉब उसका रिटायरमेंट हो जैसे हो जाता है पेंशन स्टार्ट्स इफ इट्स मोर देन 20 इयर्स ऑफ जॉब नाउ इन केस ऑफ गेजेटेड इसका मेडिकल इनवैलिडेशन हो जाता है इसका कोई ऑल्टरनेटिव जॉब लगता नहीं बट इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड इनके लिए दो रास्ता है एक साल के बाद रिव्यू करके देखा कि इसका जॉब कैटेगरी चेंज कर दे तो सेडेंटरी जॉब में या कहीं और डिपार्टमेंट में ये बैठे बैठे भी काम कर सकते उसको हम ट्रेड चेंज करते हैं इन दैट केस वी डू AEMG ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड डिकैटेगराइज कर देते बट ऑफिसर के लिए एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ही कैनॉट बी अ सेडेंटरी ऑफिसर घर पे बैठे बट इफ द लोकल सिस्टम मेडिकल डिपार्टमेंट हिज डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट DRM अगर इन कॉन्निवेंस ऑफ एवरीबॉडी अगर चलते हैं तो उसी हिसाब से वो बैठे बैठे की ऑफिस चला सकते हैं बट मोस्टली देखा गया अगर सीवियर बीमारी है वो उठ नहीं पाते कुछ नहीं कर पाते नॉर्मली दे आर मेड टू रिटायर और मेडिकल ग्राउंड पे अगर है तो उसको मेडिकली इनवैलिडेट कर देते तो दिस इज द सेकंड रीजन एंड द थर्ड रीजन इज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नाउ नॉर्मली दिस इज एप्लीकेबल टू द नॉन गेजेटेड ऑल्सो दिस नंबर 2 एंड नंबर 3 because at the time of appointment मेडिकल बोर्ड नहीं होता सिंगल डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन करता है नॉन गेजेटेड गेजेटेड की हमारे लिए ये होता है मेडिकल बोर्ड बट अदर टू आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द कैटेगरीज इनवैलिडेशन और दूसरा होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एम्प्लॉइज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मतलब ये होता है कि एक गहरा बीमारी है उसके मेडिकल सिक पे है अब उसको मेडिकल इनवैलिडेट कर दिया या उसके समय उसके बाद जो है मान लो 60 साल में रिटायरमेंट है 54 52 50 में उसका रिटायरमेंट हो गया दो ही हैज पास्ड हिज सो फुल पेंशन भी मिलेगा लेकिन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो 60-40 होता है 40 पे पेंशन होता है 60 कम्यूटेशन होता है जो हेल एंड हार्टी नॉर्मल पर्सन है उसके लिए फुल कम्यूटेशन अलाउड है या तो कम्यूटेशन करना ही नहीं है 100% कोई पेंशन लेते हैं इन प्रीवियस स्कीम तो प्रीवियस स्कीम में अगर कोई बहुत सारे अभी एम्प्लॉय ऑफिसर्स है तो उसके उनके लिए ये होता है कि बिफोर 2004 का जो था तो उनके लिए
अगर ऐसी मेडिकल इनवैलिडेट कर दिया एंड इज सो सिक सो सीवियर कि उनका कम्यूटेशन के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट थिंक्स दैट 60% उनका ना देके फुल पेंशन करा देते फॉर फैमिली बेनिफिट, तो उनका कम्यूटेशन देने से क्या होता है, लमसम पैसा मिलता है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट के पास भेजता है एंड मेनी थिंग्स हैज हैपेंड कि आज उसका रिकमेंडेशन किया एंड द एम्प्लॉय डाइड आफ्टर 7 days ड्यू टू दैट पर्टिकुलर बीमारी। तो इसीलिए कम्यूटेशन की पेंशन के लिए कभी होता, बट दिस हैपेंस वेरी नॉट इन एवरी केसेस, वेरी रेयर केसेस, बट यस मेडिकल इनवैलिडेशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इसके लिए होता है। सो आई हैव इलेबोरेटेड द डिटेल अबाउट दिस। मोस्टली पर्सनल डिपार्टमेंट इसका करता है, आप लोगों का कोई मतलब ही नहीं है इससे, बट स्टिल यू हैव टू नो बिकॉज़ दिस इज अ रेलवे रूल। नॉन गेजेटेड के लिए अगेन इनवैलिडेशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, दिस इज हाउ द ऑब्लिगेटरी मेडिकल बोर्ड हैपेंस। नो ऑप्शनल मेडिकल बोर्ड, नॉर्मली जो मेडिकल बोर्ड गेजेटेड क्लास 1 क्लास 2 के लिए द ऑर्डर कम्स फ्रॉम द रेलवे बोर्ड, और बाकी जितना नॉन गेजेटेड का मेडिकल बोर्ड होल्ड होता है दैट इज ओनली बाय द जोनल चीफ मेडिकल डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर पीसीएमडी करवाते हैं, कन्वेन कराते हैं। सपोज इन अ डिविजनल लेवल अगर मेडिकल डिपार्टमेंट का चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोचते हैं, ही स्पेशलिस्ट सेट की इसका साहब कुछ काम का नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाएगा, इसका मेडिकल बोर्ड कराना है, तो that recommendation has to be passed by the chief PCMD at headquarter first, then you hold the board details के साथ में recommendation जब भेजोगे, it depends upon whether it gets approved by PCMD or not. Once it is approved, medically invalidate हो गया। This is one reason हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कोई fraud candidate या कुछ भी है, अपील किया या कोई malingering लग रहा है, उनके लिए हम कर सकते हैं। हेलो, हाँ, मैं बताता हूँ, तो मेरा क्लास होगा 15-20 मिनट की बनता है। सो यस, सो इन दैट केस ऑल्सो मेडिकल बोर्ड ऑप्शनल हो सकता है, और कोई भी केसेस है जिसके डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल वर्कशॉप में कैरेज एंड वैगन, डिफरेंट वर्कशॉप्स है, उसी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, टीआरडी, टीआरएस एक्सेट्रा जब होगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स की, वहां पे अगर जो कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब किसी का इंजरी हुआ, तो इंजरी होने के बाद उसका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, मेडिकल डिपार्टमेंट को भेजते हैं, और दैट ऑल्सो छोटा मोटा बोर्ड बैठते हैं उसके लिए, दिस इज ऑप्शन कि उसका कैलकुलेट करो शेड्यूल इंजरी कितना हुआ, नॉन शेड्यूल इंजरी, so that we have to calculate and perform a medical board. These are all optional, or whatever in what region the PCMD wishes to perform orders a medical board. So constitution of a medical board का 3 होता है, 3 member medical officers रहेगा, the senior most is the chairman. So it is just like a triangle, apex is the chairman, तो अगर zonal hospital में होगा उसका chairman होगा, in charge of the hospital MD, medical director, division level पे mostly होता है, तो CMS is the chairman, and on the 2 bases, one is physician, another is surgeon, and on top is CMS. तो ऐसी triangle में medical board होता है। Now अगर depending upon suppose it's an ophthalmic case or it's an orthopedic case, तो 4th person is chosen, he is called as ophthalmologist हो या दूसरा हो, तो first, second and third are the in charge of the hospital, and physician and surgeon तीनों मिलके medical board. These are both are the 2, चाहे orthopedics हो, चाहे ophthalmologist हो, या चाहे लेडी ऑफिसर के लिए या लेडी एम्प्लॉय के लिए एक लेडी मेडिकल ऑफिसर ऑप्शन हो, तो these are all co-opted and optional members, main, first, second, third. So many of you in the group also have seen कि ophthalmic reason पे पहले बोला गया था कि you are not fit, so we will hold a second board जिसमें panel different रहेगा. In many railways we have undergone this, couple of you have come to know, few of, if not more, at least 5-6 जन या 3-4 जन ऐसी second board में पास होके आया है, जब it has been seen by different set of ophthalmologists also. So the people in the first board, second board should be different from the first. Now for the gazetted officer, special medical board is deal when you appeal कि मेरे को unfit कर दिया, I can appeal, so you can appeal. Who is declared unfit on account of visual acuity? So normally 2 other ophthalmologists will see.
और अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं मिलता वी कैन हायर इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो, और ऑनररी हमारा आता है उनसे भी हम बोर्ड में मेंबर बना लेते हैं. So all medical boards will be convened under the order of CMD only, except for the examination of candidates जिसका क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स है. जैसे क्लास 1 में हम लोगों ने आता है और क्लास 2 में इन हाउस आता है, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोलेगा तो एक बोर्ड होगा. बाकी के लिए सीएमडी परमिट करेगा और सीएमएस इंचार्ज ऑफ अ डिवीजन और एमडी होल्ड करता है. नॉर्मली दीज आर बीइंग डन इन द डिवीजन लेवल. So the fee that is realized for the gazetted is 100 rupees as you have paid, and rupees of 30 for the non-gazetted still. So medical अच्छा, इसके बाद आता है कुछ मेडिकल लोकल मेडिकल बोर्ड होता है, रिव्यू बोर्ड फॉर मेडिकल रिकमेंडेशन. मेडिकल रिकमेंडेशन किस प्रकार की हो सकता है? एक तो लाइट ड्यूटी, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन. नाउ लाइट ड्यूटी जो है आजकल अभी मोस्ट ऑफ द रेलवेज हैज स्टॉप. एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉई अगर सिक पे है, अगर लंबा सिक पे वो चल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ओरिजिनल जॉब में वो जा नहीं पा रहा है, तो पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत अगर हो गया तो उसका सारी छुट्टी खत्म हो गया तो बोलते हैं कि साहब मेरे को जाने दो, मैं लाइट ड्यूटी कर लूंगा. तो इन दैट केस वी टू इन राइटिंग हमें उसका डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर को लिखते वेदर देयर इज एनी प्रोविजन ऑफ लाइट जॉब. अगर वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा फॉर 2 months आई कैन अकोमोडेट, तो इसको फिट कर देते, उस दिन का सैलरी मिल जाता है, एंड देन ही रिकवर्स. ओके फाइन. But nowadays it has been stopped because एक तो लिख के भेज देता, until unless the supervisor writes yes we have a provision of light duty, तब तक हम नहीं लेते. तो mostly the rule is such now that जब तक पूरा फिट होके ओरिजिनल ट्रेड में वापस नहीं जाते, he will be kept under sick list and get treated. इसके 3 महीने बाद कब तक रखेंगे? फर्स्ट 3 months, सेकेंड 3 months, 6 महीने के बाद देखेंगे क्या चल रहा है मामला. अगर उतना ही है कि ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है, जैसे उसका बीमारी है हिसाब से उसको अगर और थोड़ा सा रखना है, मैक्सिमम 1 year, 1 साल के बाद इसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमें देखने पड़ेगा कि इसको मेडिकली इनवैलिडेट कर दे कि ये किसी काम का लायक नहीं है, अभी बैठ के भी काम नहीं कर सकता, घर जाना है, और इसको कैटेगरी चेंज कर दे, डिकैटेगराइजेशन कर दे, या एईएमजी जिसको बोलते हैं. तो ये 2 रास्ता हमारे सामने खुला होता है. और मेडिकल इनवैलिडेशन करना है तो पहले परमिशन फ्रॉम सीएमडी, उसके बाद हम बोर्ड बैठाएंगे. दैट रिकमेंडेशन इनटू डिटेल हैज टू बी सेंट, एग्जामिनेशन की डिटेल्स की, हिस्ट्री की, सब कुछ रिपोर्ट्स की. सीएमडी अगर एग्री करता है फिर उसको मेडिकल इनवैलिडेट कर देते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 5 साल नौकरी बाकी है किसी एम्प्लॉय को, सोचते हैं कि हमारा वार्ड को या स्पाउस को नौकरी मिल जाए, तो ये वॉलंटरीली बोलता है मेरे से नहीं होगा, मैं कर दूं. These things we have to judge, we have to see. नहीं तो सभी तो बैठ जाएगा घर पे कुछ ना कुछ बीमारी पे और बोलेगा मेरा बच्चे को नौकरी दिलवा दो. ऐसा नहीं हो सकता है. So that's why we have to be very careful, and personal department also takes care of these things. Then होता है कि ट्रांसफर, प्रमोशन या पोस्टपोन करना, कैंसिलेशन करना मेडिकल ग्राउंड पे. ओके फाइन, अगर जेन्युइनिटी है वी डू इट. और समटाइम्स बेटर एकोमोडेशन के लिए, फॉर एग्जांपल एस्मेटिक पेशेंट है, या फॉर एग्जांपल उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, या ऊपर रहते 3rd फ्लोर में, लिफ्ट नहीं है, ही हैज टू क्लाइंब स्टेयर्स, प्रॉब्लम होता है, देन ही अपील्स. केस देख के मेडिकल डिपार्टमेंट रिकमेंड कर देता है ठीक है इस फ्लोर में भी चेंज, एकोमोडेशन में भी चेंज. बट दिस आर डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास होता है, एंड वेरी डिस्क्रीटली हमें देने पड़ेगा. सो ऑथोरिटी फॉर रिकमेंडेशन होता है. और नॉन गेजेटेड हमारा एक लेवल कर दिया है कि एसएजी ऑफिसर्स है तो इट गोज टू हेडक्वार्टर सीएमडी, और उसके नीचे है तो इट गोज टू बाई जे ग्रेड ऑफिसर्स हम कर सकते हैं. नाउ लाइट ड्यूटी के लिए मैंने बता दिया कि इट इज नॉट परमिटेड नाउ दिस. नाउ हियर कम्स जो मैंने स्ट्रेस अपॉन कर रहा था, एईएमजी, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड. अगर बीमार है 2 रास्ता है 1 साल 6 महीने के बाद, या तो उसको डिकैटेगराइज करके ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड करा देते. उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली ही डज नॉट गो बैक टू ड्यूटी, ही रिपोर्ट्स टू पर्सनल डिपार्टमेंट. हमारा सिक लीव से वो निकल जाता है, और सिक लीव से जैसे वो निकल जाता है उसके बाद मेडिकली इनवैलिडेट होगा तो भी वो सिक पे थे, बीमार पे थे, सिक लीव लिस्ट से हम निकाल देते. सिमिलरली डेथ के टाइम पे भी सिक लिस्ट से निकाल देते नेचुरली. सिमिलरली एईएमजी के कारण भी निकाल देते. तो एईएमजी जो सिक लिस्ट से निकाल के नाउ ही इज वेयर, नो वेयर, सुपरन्यूमरी पोस्ट बन गया.
अभी ही रिपोर्ट्स टू द पर्सनल डिपार्टमेंट, जब तक वो स्क्रीनिंग कमेटी बैठते नहीं है, ही कीप्स ऑन गेटिंग हिज सैलरी। कोई काम नहीं करता है, आता है, हाजिरी लगाता है, उसको सैलरी चालू होती है until unless he is being given an alternate job by the screening committee of the division. Now alternate employment ये हो सकता है कि फिजिकल और मेडिकल ग्राउंड पे हुआ या तो विजुअल ग्राउंड पे हुआ, ये भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देने के लिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सेफ्टी कैटेगरी A1 में कोई भी हार्ट प्रॉब्लम डेवलप किया, किसी का इश्कीमिया हुआ, किसी का हार्ट अटैक हुआ, रिकवर कर गया, बाईपास तो दूर की बात है, लंबी बात है। तो इस मामूली चीज में भी अगर मामूली नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम अगर हो गया, ही कैन नॉट परफॉर्म अगेन हिज ड्यूटी इन A1, उसको हमें कैटेगरी चेंज हमारा तरफ से रिकमेंडेशन करना ही करना। सो ही इज विजुअली ही इज फिट, बट ड्यू टू दिस रीजन ही इज बीन मेड अनफिट इन A1 कैटेगरी एंड हेंस मेड फिट इन A2 एंड बिलो। तो जो भी उसमें रेंज दे देता हूं और पर्सनल डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग कमेटी उसको देखते हैं। तो इसी तरह हम करते हैं। लेकिन मान लो कोई ओरिजिनल पोस्ट पे कोई अनफिट हो गया एम्प्लॉय, नॉट फिट फॉर द अबव पोस्ट, तो एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट उसको हैंडल नहीं करते। उसके लिए 2015 से ये नियम बन गया कि एक लोकल डीएमसी बनते हैं। डीएमसी क्या होता है? डिविजनल मेडिकल कमेटी। सीएमएस रिकमेंड करता है, सीनियर मिनिमम जे ग्रेड एंड अबव मेडिकल ऑफिसर्स का 3 होता है और उसका चेयरमैन होता है सीएमएस, और वो रिकमेंडेशन अप्रूव करते हैं सीएमडी। तो एक स्टैट्यूटरी एक डीएमसी हर डिवीजन में मेडिकल डिपार्टमेंट में बना हुआ टू सी दिस डिस्प्यूटेड केसेस एंड टू गो थ्रू। सपोज द एग्जामिनर बोलते हो अनफिट है, तो डीएमसी में जाता है वो। फिर डीएमसी में जाने के बाद डीएमसी ऑल द मेंबर्स रिव्यू दैट केस, और अगर एग्री होता है ऑन पेपर ऑन फाइल पे ये सब साइन करते हैं एंड रिकमेंडेशन करते हैं। सो डीएमसी का थ्रू ये रिकमेंडेशन ऑफ एईएमजी होते फॉर परमानेंट चेंज ऑफ जॉब। So it has to be obviously signed and approved by finally the CMS. For postponement, transfer, cancellation order, इसके लिए we advise our doctors not to take initiatives because काफी implicated हो जाता है, you are favoring somebody etc etc. So we do not do normally. वही इसलिए बोला it should be very specific. Specific period और जितने देते हैं कि इसका postponement not more than 6 months. मिनिमम पीरियड अवेलेबल हो तो देते हैं, नॉट बट नॉट एक्सीडिंग 6 months। और जब हम मान लीजिए कोई क्लाइमेट चेंज होता है, किसी का सी साइड में एस्माटिक है, सीओपीडी केसेस है, उसको ड्राई एरिया चले जाए उसके बता देता हूँ। हम ये नहीं बताते कि उसको जो है आसाम से उसको गोवा भेज दो। वी विल से कि हिली एरिया, कोल्ड एरिया, इसके यहाँ से ही शुड बी शिफ्टेड टू अ ड्राई प्लेस। So this is so far about these 2 chapters. अभी रह गया थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट वीक होगा।